Now I'm going to start a unit third. That is lots of topic in unit third, but there is some topics very important for exam, and further it's also useful for the test and assignments for paper. Now the first topic is backup security measurement. When we talk about the backup security measurement, it means when we talk about the backup. Firstly, I would like to explain what is backup. Backup is a collection of the data. When we want to recover that data anytime anywhere, it's called backup. ठीक है. What is the measurement of backup? That there are lots of things and lots of things and lots of technology to recover the backup data and provide the security to secure the data in form of the backup. When any company and bank companies and organizations want to back up our data is a daily basis, weekly, monthly, yearly, then they are also talk about the security of backup and also ensure about the security of backup, because when we data is leaked from the main patterns, and data is also leaked for the backup patterns, it means the data is very important, and it means कि data is secure from the unauthorized access and unwanted access. So now let's talk about the measurement. कैसे मेजर करते हैं इसकी टेक्निक को देखिएगा. लिखा डेटा बैकअप आर टेकन द इम्पोर्टेंट डेटा फाइल्स एंड द सिस्टम फ्रॉम द बिंग दैट ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर ऑफ ह्यूमन एंड रिकवर इन द केस ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. जब भी कभी डेटा का लॉस होता है, किसी भी ह्यूमन थ्रेट से होता है, चाहे नेचुरल डिजास्टर होता है, तो बैकअप कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे. प्लस उस डिजास्टर से हम डेटा को बचाएंगे कैसे, इसके बारे में बात करेंगे हम. यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. पहला इसमें टॉपिक है आपका असाइन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स कि देयर इज सम पीपल हु असाइन फॉर दैट बैकअप पर्पज एंड दैट बैकअप ऑफ डेटा, एंड ऑल्सो दैट पर्सन इज गिवन अ authority to access that particular data and that particular file and informations. And also they measure the accountability, means they measure all the data retrieved by other peoples and five peoples, and deleting, updating, and all the technique, all the things are useful for the assignment persons, and that persons also account all the details of the informations and backup parties. Now we talk about the access of authority limited. It means ki the authority person is limited. It means the number of people are group of people are used to access the backup data is only. Now next risk management. Risk management, it means ki when we talk about the backup, then we also talk about the risk. What kind of risk there for achieving the data and retrieving data and access data and destroying data. The first talk about the risk. When they store data, any confidential parties and any authority parties, then we store the data is any pen drive, any hard disk, any drive, then we are not sure about it if that drive and that pen drive is very secure and safe. So we just talk about the pen drive. Where is the pen drive? जहाँ पे पेन ड्राइव रखी जाती है या जहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाती है, वहाँ पे हम उस हार्ड ड्राइव की भी सिक्योरिटी ध्यान रखते हैं. इट मीन्स कि जब हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर करेंगे तो उसको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि उस हार्ड ड्राइव को वही लोग एक्सेस कर सके जो ऑथराइज पर्सन हो. इसलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात की जा रही है. फिर बात करेंगे डेवलपिंग डेटा प्रोटेक्शन प्रोसेस का. मतलब उस डेटा को जो डेटा हमने डेवलप है, जो डेटा बैकअप बनाया हम लोगों ने, उसके प्रोटेक्शन में क्या क्या प्रोसेस यूज़फुल होंगे. प्रोसेस इन द सेंस नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग उसको एक्सेस करेंगे, कौन एक्सेस नहीं करेगा, कौन उसको रिट्रीव करेगा, कौन नहीं करेगा. प्लस साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डेटा जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो डेटा हमारा वैल्यूबल है कि नहीं है. अब वैल्यूबल डेटा नहीं होगा तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे. फिर बात नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग द प्रोसेस. का मतलब क्या हुआ, जब डेटा हमने बैकअप बना लिया, हमने सिक्योरिटी भी दे दिया, उसको प्रोसेस वाइज को एक्सेस करना, रिट्रीव करने अथॉरिटी भी दे दिया, देन वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग. एग्जीक्यूटिंग मीन्स कि व्हेन वी स्टोर द डेटा एनीवेयर, तो जस्ट चेक द क्लिप एंड जस्ट चेक द वीडियो एंड क्लिप कि डेटा जो एग्जीक्यूट हो रहा है, वीडियो प्ले हो रहा है, वो रियल टाइम में प्ले हो रहा है कि नहीं. इट मीन्स अगर डेटा हमने रिकॉर्ड कर रखा है तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब प्ले कर रहा है तो प्ले ही नहीं हो रहा, फॉर्मेट सही नहीं हो, चाहे सारी चीज़ें हम चेक करते हैं. टेस्टिंग मतलब होता है छोटी छोटी क्लिप बनाकर उसको टेस्ट भी करते हैं कि जो बैकअप बना के हम रख रहे हैं वो बैकअप सही जगह प्रोसेस कर रहा है कि नहीं, सही से एक्सेस हो पा रहा है, रिट्रीव हो पा रहा है कि नहीं. ठीक है. फिर बात करेंगे इसकी एडवांटेज की. एडवांटेज मतलब कि बहुत सारे एडवांटेज, मतलब क्यों एडवांटेज क्या है, क्यों बनाया गया है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एडवांटेज में.
पहला एडवांटेज इसका यही है कि हम लोग इसको डेटा को क्लोज पर्सन प्रोटेक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। क्राउड कंट्रोल मतलब क्या, कोई भी अनवांटेड एक्सेस नहीं कर सकता है। गार्ड हाउस पर्सन मतलब कि गार्ड असाइन करते हैं ताकि उसका हार्ड डिस्क को, उस हार्ड ड्राइव को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। प्लस अलार्म रिस्पॉन्स मतलब क्या, अलार्म के थ्रू हम अवेयर कर सकते हैं जो भी कोई अनऑथराइज एक्सेस डेटा पे होता है या बैकअप डेटा पे होता है। तो देन आपका होता है सर्विस लाइसेंस एंड पॉइंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या होता है, सर्विस लाइसेंस मतलब सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाते हैं, इसके थ्रू हम डेटा का प्रोटेक्शन देते हैं। देन पॉइंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है किसी कंपनी को मैंने अथॉरिटी दे दिया या हायर कर लिया कि वो हमारे पूरे डेटा का बैकअप बनाएगा पर डे के, पर वीक के हिसाब से, साथ साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, साथ साथ वो उसी पर्सन को, उसी उन लोगों को ही डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी देगा, परमिशन देगा जो ऑथराइज्ड होंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे इसमें हम। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फिजिकल सिक्योरिटी एंड आईटी एसेट्स। फिजिकल सिक्योरिटी एंड आईटी एसेट्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे व्हाट इज़ फिजिकल सिक्योरिटी या फिजिकल। फिजिकल वर्ड जब भी हमारे मन में आता है, हमारे मन में ये आता है कि फिजिकल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना, टेंचेबल चीज़ को हम टच कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके वर्कआउट कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं, साथ साथ उस पर कोई एक्शन भी ले सकते हैं, उसको हम फिजिकल बोलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ आईटी एसेट्स। मतलब क्या, आईटी मतलब क्या, आईटी का मतलब ही हो गया कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आईटी कंपनीज जहाँ पे बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सिक्योर करने की जिम्मेदारी हमारी होती है, जिनको एक्सेस करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि हम किन किन लोगों को एक्सेस करने की अथॉरिटी देंगे, हम कैसे कैसे उस डेटा को सिक्योर रखेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। प्लस 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कैसे इन 3 पॉइंट को हम सिक्योर करेंगे। तो पहले बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी की। लिखा हुआ फिजिकल एसेट्स इन अ टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, कमर्शियल और एक्सचेंज वैल्यू दैट हैज़ द मशीन और एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फिजिकल एसेट्स की बात करेंगे, जब भी इसका मतलब कि फिजिकल एसेट्स मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे कंपनीज़ के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिससे कुछ वैल्यूज़ हो, जिसको हम एक्सचेंज करते हों या यूज़ करते हों, या फिर अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए, किसी भी कमर्शियल काम के लिए, किसी भी डेटा ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज़ करते हो, सारी चीज़ें फिजिकल में आती हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या होती हैं फिजिकल एसेट्स। इसमें लिखा हो मशीन, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, कैश, व्हीकल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको पता है किसी भी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री बनाई जाती है, कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो, या फिर कोई भी कंपनीज अगर हो जो नेटवर्क वर्क करती है, जब जो सिक्योरिटी वर्क करती है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उन सबके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन सारे डेटास को, उन सारे एम्प्लॉयज़ को, उन सारे कंप्यूटर्स को किसी मशीन के थ्रू, किसी बिल्डिंग के थ्रू, किसी कैश के थ्रू, किसी व्हीकल के थ्रू, किसी कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उसको इंश्योर करते हैं कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो, और उसके लिए आप ऑथराइज पर्सन हो, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। लेकिन जब इसके साथ में IT एसेट्स आ जाता है, उसके बाद IT एसेट्स मतलब अनटचेबल चीज़ें, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, आपका ब्रांड वैल्यूज़ हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क्स हो गया, लोगो हो गया। क्या मतलब हुआ इसका। पहले बात करते हैं हम पेटेंट की। मतलब क्या कि आप किसी से मान लो कोई चीज़ आपने लिया है, कोई सॉफ्टवेयर लिया है, आपने उसको बनाया है, आपने सब कुछ किया, लॉज क्रिएट किए हैं, तो आपको वो सब कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, अंडर गाइडेंस ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता है। कॉपीराइट्स मतलब आपने कुछ बनाया, आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने कोई नोट्स बनाया, कोई आपके कॉपीराइट्स, आप अथॉराइज पर्सन हो उस चीज़ को कॉपी करने में, बट अगर कोई आपके कॉपीराइट को चुरा ले तो उस पर आप क्लेम कर सकते हो। ये भी आपका क्या एसेट्स होते हैं। ब्रांड वैल्यूज़ मतलब अगर मान लीजिए किसी पॉपुलर ब्रांड है, उसके कुछ वैल्यूज़ हैं, उसके मार्केट में लोग उस ब्रांड को जानते हैं, समझते हैं, तो अगर उस ब्रांड की कोई डुप्लीकेट ब्रांड बना के अपनी चीज़ों बेचना शुरू कर देते, ये भी क्या एसेट्स होती हैं। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, पता है आप लोगों को सॉफ्टवेयर जो होता है वो कभी भी हार्ड फॉर्म में नहीं होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है। इट मीन्स कि इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी यूज़ करता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट इसके एक्सेस करने, इसको यूज़ करने की अथॉरिटी सबको नहीं होती है। अगर आप कॉपीराइट्स हो, अगर आपके पास की हैं, आप वैल्यूएबल पर्सन हो, ऑथराइज पर्सन हो, तो ही आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाते हो, अदरवाइज नहीं यूज़ कर पाते हो। बट अगर आप किसी कॉपी फॉर्म को यूज़ करते हो, किसी डुप्लीकेट फॉर्म को यूज़ करते हो, उसका कोई भी कीज़ नहीं होती हैं, वो आपका डेटा लॉस भी कर सकती हैं, डेटा को हैक भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए एसेट्स में ये भी आते हैं। नेटवर्क्स हो गया, लोगोज हो गया, सारी वो चीज़ें आती हैं जो आप कंप्यूटर पे यूज़ करते हो, सारी आप IT एसेट्स में आती हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे हम थ्रेट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी।
जब हम थ्रेट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो थ्रेट्स ऑफ, हमने इसका नाम थ्रेट्स क्यों रखा है, थ्रेट्स क्यों रखा कि थ्रेट्स मतलब मैंने बताया था आप लोग को अनवांटेड एक्सेस या अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है ना। जब डेटा का अनवांटेड एक्सेस अनऑथराइज एक्सेस होता है उसको हम थ्रेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से फिजिकल एसेट्स को या फिर आईटी एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। पहला लिखा है फिजिकल एसेट डिस्ट्रॉय बाय द ह्यूमन बींग्स, किसी फिजिकल एसेट्स को हम ह्यूमन बींग के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ह्यूमन बींग डिस्ट्रॉय